important word. Short, lafda, jhagda. Synonyms of the word strife, quarrel, row, contention, dispute, clash, discord. Now, next word. Antonyms of the word harmony, accord, and concord. Amity, please mute your mic. Friendship and conciliation, also important word. Conciliation. Now, next Wow, word. next Fickle. is of your house in the school. And it should be Yes, included in landmark. हाँ बनाओ. मैंने please ड्राइंग mute your की. mic. Okay. Fickle. Fickle means chanchal, asthir. Synonyms of the word wavering, unsteady, and volatile, and capricious. Important word. Capricious, variable, changeable, and vacillating. Now, antonyms of the word resolute, determined, stable, inalterable, steadfast, and invariable. Steadfast. Now, next word factitious. Important word factitious. Factitious, काल्पनिक, अवास्तविक, unreal. Synonyms of the word mythical, fake, unreal, fabricated, fictional, imaginary. Counterfeit, also important word, and bogus. Bogus, bogus. Now, antonyms of the word actual, real, true, genuine, factual, verified. Next, fidelity. Fidelity, fidelity, वफादारी. Synonyms of the word loyalty, trustworthiness, obedience, devotion, and allegiance. Now, antonyms of the word treachery. Treachery, important word. Treachery. Treachery, perfidy, and subterfuge, unfaithfulness, trickery, and chicanery, defense, and deceit. Next word, filthy. Filthy. Filthy, ganda, credit. Synonyms of the word obscene, obscene, and vulgar, dirty, grimy. Also important word grimy, and soiled. Now antonyms of the word clean, and span, spike and span, neat and clean, chest and pristine. Now next, firm, firm, from firm, drid. Synonyms of the word strong, endurate, tough, hard, unyielding. Now antonyms of the word uncertain, weak, feeble, kamzor, feeble, feeble, and fragile. Now next word, fitfully, fitfully, अनियमित ढंग से. Synonyms of the word aperiodic, intermittently, irregularly, sporadically. Now antonyms of the word systematically, methodically, and legendary and carefully. Now flabbergasted, 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 आश्चर्यचकित. Synonyms of the word astonished, stunned, and stupefied, shocked, flumbox, important word. Flummoxed, flumbox, flummoxed, and aghast, bewildered, also important word. Bewildered, bewildered, and dumbfounded, perplexed, baffled, also important word. Baffled, baffled, and puzzled. Now, antonyms of the word clear, oriented. Next, flair, 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 pratibha, yogita. Synonyms of the word aptitude, bent, faculty, neck, also important word, knack, neck, ability, instinct, and panic. Panic also important word,
PANACHE. Now, antonyms of the word: stupidity, inability, ineptitude, incapacity. Now, flamboyant. Important word: दिखावा, भड़कीला, आडंबरपूर्ण. FLAMBOYANT. Flamboyant. Synonyms of the word: showy, loud, gaudy, garish, ostentatious, pretentious, flashy, pompous. Also important word: POMPOUS. Pompous. Now antonyms of the word: modest, homely, reserved, simple, understated, and homely. Repeated word. Now next, flattery. FLATTERY. Flattery, चापलूसी, खुशामद. Synonyms of the word: adulation. Adulation, important word: ADULATION. Adulation, praise. Sycophancy, also important word: SYCOPHANCY. Sycophancy. Obsequiousness, fawning, servility, and subservience. Next, antonyms of the word: insult, affront, slur, important word: SLUR. Snub, also important word: SNUB. Snub. Slander and label. Now today's last word of vocab: flawless. FLAWLESS. Flawless, त्रुटि रहित. Synonyms of the word: perfect, immaculate, perfect, and impeccable and faultless. Antonyms of the word: imperfect, flawed, faulty, defective, disfigured. Yes, do you have any problem related any word? Then we discuss here. Yes, have you? Hello. Thank you. No, ma'am. Thank you, ma'am. Most Thank you. welcome. Very much. Most welcome everyone. Just wait. हम प्रेजेंट कर रहे हैं. सर वोकेब जब देखते हैं तब तो लगता है कि हाँ मतलब याद हो रही है, मतलब पर कुछ मैम कुछ न्यूमोनिक भी लगाया करो थोड़ा सा, जिससे कि थोड़ा बहुत याद होने में थोड़ी सी आसानी हो. मैम आप सही कह रहे हैं, न्यूमेरिक यूज करके तो हम मान लीजिए आपको रटवा देंगे, लेकिन अगर आप उसको भूल गए ना तो आता हुआ वर्ड भी आपके दिमाग से स्लिप कर जाएगा. सारे वर्ड के साथ यूज नहीं किया जा सकता. जैसे जो हार्ड वर्ड आप लोग को लगे, ठीक है, जी तो उस जी पे हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन सारे वर्ड के साथ आप प्रेजेंट में तो आपको लगेगा हाँ हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, वहां से रिलेट करके लर्न कर लेंगे, लेकिन फिर वो जी ना आप एग्जाम नहीं ले जा पाएंगे. एग्जाम हॉल तक आपका जो सेल्फ मेमोरी रहेगा, जो आप दिमाग में फिट किए रहेंगे, वही आपके साथ जाएगा. अगर ट्रिक भूला तो सब गड़बड़ हो गया. जी जी. इजी चीज भी दिमाग से स्लिप हो जाता है. बट ये हर वोकेब जगह याद काम ही नहीं नहीं करती है मैम. नहीं मैम, हर जो जगह हमको काम लगते नहीं हैं ना कि करती ये है. जो नए हैं, न्यू वन है, तो मतलब उस पे डिस्कशन थोड़ा सा मतलब कर लिया जाए ना, तो एक माइंड में नहीं एक फील हो अगर जाएगा हाँ ग्रुप. तो नहीं, आप सही कह रही मैम, अगर डिस्कशन होगा तो दिमाग में फिट, तो आप हमें बताइएगा जो वही भी तो मैं आप लोग कह को रही हूँ, वर्ड जैसे लगे. आपको न्यू वर्ड लगा है कि हाँ मैम इसमें ये वाला न्यू है, आप बताते हो ना, तो मतलब उस वर्ड जी को जी, मतलब थोड़ा सा उससे वो हो जाए रिलेट करा डिस्कशन. दी. हाँ रिलेट बस ये करके पढ़ा बात जा है. सकता है, उसको रिलेट कोरिलेट करके करिए पढ़ा जा तो याद सकता है. रहेगा ना, मैं कह रही मतलब पूरा नहीं पहुंचेगा वो, बट कहीं तो स्ट्राइक नहीं, करेगा, हाँ ये वर्ड पढ़ा था हमने. बात बात एक ये है, अगर हम उसको रिलेट कर लेते हैं, कोरिलेट अगर कर लेते हैं किसी तरीके से किसी वर्ड से, तो वो हमें आसानी से याद हो जाएगा. अब जैसे मैंने कोई वर्ड बोला, सरप्टिटियस. सरप्टिटियस का मीनिंग होता है जो सीक्रेट हो. अब जो सीक्रेट होगा वो हिडन होगा, वो कवर्ड होगा. इस तरीके से रिलेट करके पढ़ा जा सकता है. हाँ वो सर, वही है ना फर्टाइल कि सब होगा, अपनी अपनी फील्ड ओपिनियन होगा. देंगे, कुछ यस अपना सर, भी यस सर. लगाएंगे, कुछ अपनी भी ट्रिक बनाएंगे, तो ये है ना थोड़ा सा ये तो मतलब अलग आप इमेज लोग जैसे रहेगी. देखिए, सुप्रिया मैम हुई, रीना मैम, आप लोग एक्टिव रहती है, हालांकि हम किसी पर्टिकुलर नेम नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, लेकिन जो नहीं एक्टिव रहते हैं, नहीं. देखिए हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, कोई अपना कोई सजेशन ही नहीं देता. इवन हम और सर बार बार बोलते रहते हैं कि प्लीज आप लोग कुछ बोला करिए.
जरूरी नहीं मैम सब एक्चुअली यहाँ मैम पे हम लोग फाइव ऐसे है। ही पढ़ते हैं, हम जी लोग तो बुकैब ऐसे ही जी पढ़ते आए हैं ना, तो वही मुझे लगा कि हाँ कुछ होना नहीं चाहिए तो इसी टाइप हम से। नहीं नहीं मैम आपका नहीं सजेशन मैम सही बहुत बता अच्छा है। रही तो किसी भी वर्ड हैं, में मैम सही अगर आप बता लोग रही को लगे कि मैम ये इट्स द न्यू फॉर मी ओके, क्योंकि मैम यस हमें ऐसा लगता है आप लोग बोलते नहीं तो आप लोग पूरा कवर करके बैठे हो, मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ जस्ट लाइक मी आई फेल्ट नहीं दैट। मैम, तो मैंने जब तक तो भी क्लास में रही हूँ, मैं अटेंटिव रहती हूँ, मैं कभी पैसिव लिसनर नहीं होती कभी भी क्लास में किसी में भी। अदर बस वही ना कि टाइम ना हो तो दैट्स अदर रीजन, बदर अगर मैं अदरवाइज कहीं इस मतलब जगह पे ग्रामर। फंसी हुई हूँ कि जहां मैं बोल नहीं सकती, तो ही मैं उसको स्किप करती हूँ। अदरवाइज मैं हमेशा लिटरेचर हो या ग्रामर हो या वोकेब हो, स्पेशली वोकेब, मुझे आपका पढ़ाने का जो मतलब कि आवाज में जो इतनी सॉफ्टनेस है ना, वो मैं चाहती हूँ कि मेरे में भी आए, पर मेरे में मैं नहीं आ तो उसी सकती में हो। खो जाती हूँ। मैं तो उसी में खो जाती हूँ, हाँ बोलते बोलते अपना हाँ माइंड निमोनिक वैसा। मैं मैम पढ़ाती है ना तो मैं अपना लगाते चलती हूँ, बट जब मैं सुनती हूँ हाँ, तो मैं खो जाती हूँ। या मैम और जैसे कि रीना मैम अभी आप एक लोग वर्ड आया एक्टिव रहते फ्लैटरी हैं। का, फ्लैटरी जी से जी जी रिलेटेड आया, इसका फ्लैट साइकोफेंसी आया, फ्लैटरी यहाँ पे से। एक एडुल्यूशन हाँ जी आया। जी एक एडुल्यूशन होता हाँ है, एक एबुल्यूशन होता है। इनमें सिर्फ डी का और बी का अंतर होता है। तो अबल्यूशन जो होता है वो पवित्रीकरण होता है, वॉशिंग हाँ होता हाँ है। हाँ। और अब एडुल्यूशन लेजर जो लगा होता के है पवित्र वो वो चापलूसी होती है, फ्लैटरी खुशामद होती है। चापलूस जी तो खुशामद करना हम चापलूसी करना। हाँ, तो हम यहाँ पे जो ना, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हम जब किसी चीज को देखते हैं, जिस चीज पर हम डिस्कस कर लेते हैं, वो चीज हमें याद रहती है। ये वर्ड क्यों याद है? क्योंकि मुझे लगता है कि अब पहले जब आपने सेशन दिया था, मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था शायद, मतलब मैंने डिस्कस जी करने की कोशिश की थी। और जी जैसे जी ये मैम वर्ड अगर कल एग्जैक्टली कोई मैम पूछेगा ना, 4-5 दिन बाद भी पूछेगा तो सब बता देंगे, क्योंकि अब ये एग्जैक्टली डिस्कस हो मैम। गया तो थोड़ा सा। आप जैसे दैट इज सुप्रिया पॉइंट। मैम हुई जी, जो नए लोग हैं, हालांकि हम मैं आप लोग से यार पहली बार इंटरेक्ट हो रही हूँ, सुप्रिया मैम रीना मैम, तो आप लोग बहुत एक्टिव रहते हो, तो जहाँ पे आप लोग को लगे, चाहे हम हो चाहे यस के सर हो, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा करिए, तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ आप लोग यहाँ पे फंस रहे हो या हमारी हेल्प की जरूरत है। हमें लगता है आप लोग बस सुन रहे हो तो यू आर अ परफेक्ट। सो तो नेक्स्ट टाइम नहीं मैम मेरे अगर मुझे कल तो मैम पढ़ाएंगे। ये बताएंगे लगता है मैम ना कि कोई मुझे तो आ ही नहीं रहे वर्ड्स, तो मैं इसलिए फिर मैं अपने हिसाब से याद नहीं करना नहीं शुरू करती यहाँ हूँ। कोई मैम किसी को आप टीचर मत समझिए, सब टीचर है नहीं यहाँ नहीं पे, एक दूसरे को टीचर सब तो टीच नहीं, करते लेकिन हुए हाँ चलेंगे जी मैम। तो चलिए कल से ठीक है आप लोग प्लीज हाँ बताइएगा, उस पे हम लोग सब लोग अपना राय देंगे कि हाँ इसको ऐसे लर्न किया जा सकता है, इससे सबकी हेल्प हम्म, होगी। ये तो थोड़ा जी वेरी इंटरेक्टिव नाइस भी मैम। बनेगी ना, चलिए क्लास भी इंटरेक्टिव या बनेगी ना, सारे इंटरेस्ट लेंगे फिर। एग्जैक्टली हाँ, जितने सब मेरी लोग आवाज मिल इंटरेस्ट रही लेंगे उतना ही जी अच्छा होगा। जी सर, आपकी तब तो आवाज अच्छा नहीं मेरी हो आ आवाज जाएगा मिल ना। रही है आप लोग? यस सर नाउ भाई यू सौभाग्य कंटिन्यू। की बात एक ये है कि यस कम सर। से कम जो है आज कुछ हम दोनों लोगों के अलावा कोई तीसरे व्यक्ति भी बोले हैं और थोड़ा ठीक ठाक बोले। अरे सर काफी दिन जी लगा सर। कि आप लोगों की आवाज सुनने के लिए ये जो है कम से कम अवसर मिला। सर कोई नहीं भी सर, ऐसी कोचिंग बात हो, देखो रीना मैम को सब जानते हैं। देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी एक निजी पहचान बनाना, ये तो हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। ये जो है रीना मैम की एक अपनी पहचान है। हालांकि मैं जिस भी कोचिंग में रहा हूँ, शायद एक कोचिंग में हम और रीना मैम भी रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मैं क्लास में लेता नहीं था वहाँ पर। नहीं सर सही हम ना लोग मैडम? एक्टिव रहते थे ना, तो मतलब जितने भी वहाँ पे एक्टिव रहे थे हम्म। वो सब जानते हैं। तो संजू सब सर की लोग हैं क्लास, हम अनुज सर की ज्यादातर। क्लास, हरवेंद्र सर की क्लास, सारे हाँ में एक्टिव हाँ। रहे। मतलब और जब मुझे टाइम था पढ़े हम लोग भी, जो अब है ये ना अभी स्टार्ट किया है थोड़ा सा, तो अब जो ये मेरा चाहते हैं कि डाउट मैं 1 घंटा दूं, बहुत अच्छे से दूं। ये सर, बिल्कुल मैं बिल्कुल सही बात है इसलिए जी। इसीलिए जानी जाती होंगी क्योंकि जो मेरा डाउट होता है ना, मैं चाहती हूँ भले ही अगला वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है, चाहे इसको ये भी नहीं पता, बट मैं चाहती हूँ कि मैं उस डाउट को वहीं पे क्लियर करूँ। जो मेरे से सीनियर है, जो ये मुझे टीच कर रहे हैं, हो सकता है कुछ नया देखने को मिले, और होता है हमेशा। जब मैं अपना डाउट क्लियर करती हूँ, मैं उसको लर्न ही नहीं करती, एक एक्स्ट्रा चीज भी सीखती हूँ। हाँ, वो बिल्कुल बात अलग बहुत है सही, कि बहुत अच्छी हैबिट है। रीना मैम, रीना बहुत मैम अच्छी मोस्टली बात ऐसा है। होता है। रीना मैम मोस्टली ऐसा होता है लोगों के साथ। अब सर ग्रामर पढ़ाते हैं तो बाजी टाइम मेरा रूल ऐसा हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है मुझसे, लेकिन टेबल तुरंत लिखो, हमारे एस के सर 12 तुरंत हमारे 13 एस के सर 14 जो है 15। जैसे इम्प्रूव करते हैं मेरे मेरे डाउट को। ठीक है, तू लिखना, हाँ ठीक है मैं ठीक है, ओके ओके। बताता भी हूँ।
फिलहाल जो भी आज जो है आप लोगों के सजेशंस आए हैं, इस सजेशन के आधार पर जो है हम लोग अपने अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे अपने पैटर्न को। वैसे सर अभी हम यहाँ तक के ये चीज सोच 12 से करके 13 लोग, मैं जिस लास्ट दिन से जब से जुड़ने लगी हूँ, मैंने 12 से 13 लोग यहाँ पे अटेंटिव पाए हैं। स्मिता मैम है, श्रीपाल सर है, सुनीता मैम है, मैं हूँ, सुप्रिया मैम को भी मैंने ही सजेस्ट किया था, मैं कैसे ऐसे क्लास चल रही है, आप आओ वहाँ पर। मतलब कुछ ना होने से तो कुछ होना बेटर होगा। और हम जी एक हाउस वाइफ है, तो हम पर्टिकुलर किसी भी टाइम में इतना टाइम नहीं दे सकते। तो जो यहाँ पे लोग हैं ना, वो अपने आप के, एक सोनम मैम है, तो ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पे अटेंटिव आते ही आते हैं, 12-13 लोग। तो यहाँ पे क्वांटिटी कोई ऐसी तो हो नहीं रही जिसमें कि हम किसी चीज को डिस्कस ना कर सके, या किसी चीज को हम जो है अगर ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश कर सकते हैं, करें तो कर नहीं सके। ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई बिल्कुल हो इतने सकता लोग है। जुड़े हुए हैं कि भाई किसी के अगर राय विचार लेने लगे तो ऐसा तो सेशन ही नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, बाकी की बस अभी जो है रीना मैम जो है, शायद अभी आप जुड़ी हैं रिसेंटली हमसे, एक पहले जो है हम समर वैकेशन चला चुके हैं, और उसमें अच्छा जो सर, वोकैब है, हाँ हम लोग जो वोकैब जो है एसपी बख्शी से वोकैब कवर किए, एक वर्ड उठाए, उस वर्ड का जो है हमने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच लिया, क्या है वो, फिर उसका मीनिंग हिंदी में लिया, फिर इंग्लिश में उसके कितने इंपॉर्टेंट मीनिंग हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उठाया, उन मीनिंग्स का हिंदी में अर्थ क्या है और कहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं हम, ये देखा, उनका एंटेनिम देखा, और प्लस उस वर्ड का यूज भी हमने देखा। इतनी चीजें जो है हम एसपी बख्शी से कवर करे थे समर वैकेशन में। तो जितने भी साथी हमारे जुड़ रहे हैं, तो जनरली ये सब हमारा निमोनिक्स और सार्ट्रिक को देख चुके, तो मुझे लगा और मैडम को भी लगा कि शायद इन लोगों को सिर्फ वही रिकॉल कराना है चीजों को, तो मैडम भी उसी हिसाब से करती हैं कि एक वर्ड है, ये चीजें हैं, रिकॉल हो जाए आपको, वो है ना कि बाकी आपके मैम दिमाग करा में दी ही है है। ना, तो उनको ये लगा। कोई नहीं सर, मुझे जो लगा मैंने जिसने वो सेशन लिया उन्होंने होगा बढ़िया किया, सजेशन है, और अब इस बारे में हम लोग अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसके हिसाब से आगे के सेशन जो है गवर्न किए जाएंगे। किसी को भी कोई भी सजेशन है, इसलिए हमने इस प्लेटफॉर्म को ओपन कर रखा है ताकि हम वो एक्टिविटीज करें जो जनरली लोग नहीं करते, है ना, इसीलिए स्पेशल चाहते बनाना इसको। तो जब आपके सजेशन आएंगे, आपको जिस चीज की नीड होगी उस चीज को हम लोग प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सेशन जरूर ये ओपन है, लेकिन टाइम सबका कीमती है। हम ये नहीं जान चाह रहे कि कोई समय हमको दे रहा है तो हम उससे कुछ सीखें, तो वो हमसे जो है ऐसे ही जाए, वो हमसे बहुत कुछ सीख के जाए, थोड़ा बहुत अगर वो चाहे तो अपना विज्ञान इस प्लेटफॉर्म पर दे दे, ये एक अपना उद्देश्य है ना। तो नेक्स्ट डे से उस चीज को हम सोचेंगे कैसे बनाया जाएगा वो कैब के विषय में। चलिए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। जी सर, जी सर। देखिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो हिस्ट्री में जो है शुरू से लेके ओल्ड इंग्लिश से लेकर के हम लोग रेनेसा पढ़ चुके हैं और नियो क्लासिकल में चल रहे हैं। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजी एक रहती है कि एक टॉपिक हम कवर करें और उस टॉपिक कवर करने के बाद जो है हम उस पर पर्टिकुलर उसी टॉपिक को लेकर के एक टेस्ट बनाएं और टेस्ट जो है वो हम करवाएं। आप पेड सेशन में हमारी यही स्ट्रेटेजी चलती है अब तक के, क्योंकि यहाँ पर एक ओपन सेशन था और जो लोग थे वो भी स्टेब्लिश नहीं है, कोई आज जुड़ रहा है कल वो गायब हो जा रहा है, तो ऐसे में हम किसको पढ़ाएं और किससे टेस्ट लें। लेकिन इधर हम देख रहे हैं 2-4-6 क्लासेस से रीना मैडम और सुप्रिया मैडम, आप तो खैर रेगुलर हैं, बाकी 2-3-4 लोग हैं वो भी रेगुलर हो गए हैं। तो जो साथी रेगुलर रहे तो उनसे टेस्ट अगर लें, उनसे डिस्कस करें, तो एक कम से कम इंटरेक्शन बनता है। अभी हम न्यू क्लासिकल पे अगर कोई कुछ कराना चालू करें, डिस्कस उस पर करें, तो उसमें 4 लोग ऐसे हैं जो पढ़े ही नहीं हमसे, तो हम तो अपने डाटा और नोट्स के आधार पर डिस्कस करेंगे, उनको पता ही नहीं है फैक्ट्स हो, तो या तो फिर चीजें बताना नहीं चाहते, तो फिर वो मजा नहीं आता। तो ये स्ट्रेटजी हमारी है और इसी को ही हम फॉलो करना चाह रहे हैं। क्यों, ठीक है ना? इंटरेक्शन होना होता है सर जी। ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होता कि जिसकी कोई कमी नहीं आती है या जिसको कोई डाउट नहीं आता, और जिसको कोई डाउट आ रहा है तो उसको क्लियर नहीं कर रहा है तो दिक्कत आती है यहाँ पे। नहीं नहीं बिल्कुल। तो आज तक के जितना हम लोगों ने रेनेसा तक के पढ़ लिया है, तो एक बार हम आप लोगों से उसका एक रिवीजन चाह रहे हैं,
हालांकि रेनेसा तक के ज्यादा हो गया पोर्शन। हम चाहते तो बड़ा, जैसे ओल्ड इंग्लिश पढ़े तो ओल्ड इंग्लिश पे ही डिस्कस कर लिए, फिर मिडिल पे आए तो मिडिल कर लिया, फिर रेनेसा किया तो रेनेसा कर लिया, फिर किए। लेकिन अभी हमने कुछ जो है लगभग 20-25 क्वेश्चन उस पे जितना हमने पढ़ा है अब तक के, उस पे बेस्ड कुछ 25 क्वेश्चन बनाए हैं हमने। तो उसका आप लोग आंसर दीजिए और जहाँ पे कंफ्यूजन हो तो उस पर डिस्कस हो जाए। तो जितना जो है हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक के, तो एक क्विक रिवीजन उसका हो जाएगा। क्यों, तैयार है? यस सर, बिल्कुल सर। जी, जस्ट वेट। स्क्रीन दिखने लगी? यस सर सर। विजुअल है। जितना अभी तक हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा है ओल्ड इंग्लिश से लेकर के अब तक के, वो सारे पे हमने लगभग 25 क्वेश्चन बनाए। आप जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, नियो क्लासिकल पढ़ रहे हैं तो नियो क्लासिकल यूं ही समाप्त होगा तो हम 25 से 30 या जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, वो क्वेश्चन जो है हम बना के आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे और उस पर जो है डिस्कस किया जाएगा। वो चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और कुछ एक क्वेश्चन बैंक भी दिमाग में आ जाएगा हमारे, है ना। पहला क्वेश्चन, व्हाट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रूल ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स सच एज द ज्यूट, एंजल्स एंड सैक्सन्स? क्या आंसर होगा? मिडिल इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश। ओल्ड ऑप्शन इंग्लिश। मिल तो सी, सी ऑप्शन, ओल्ड सी इंग्लिश ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाँ, क्योंकि वहां पर जूट और सेक्शंस की बात जो है वहीं पर करी गई थी ट्राइब्स की। अगर आपसे ये पूछ ले कि इन विच पीरियड थी ट्राइब्स आर प्रोमिनेंट रूलर, तो वो भी आपका यही होगा, ओल्ड इंग्लिश ही होगा। Who was the notable writers of the Middle English period who authored the Canterbury Tales? जोफरी चौसर। तुम समझ गए होंगे। जॉफरी चौसर, ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। अगला है, which literary device became the extremely proper during the Renaissance period? सोनेट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्योंकि ड्रामेटिक कंसीट भी था, मेटाफिजिक्स भी थे, सोनेट भी था। क्या होगा? सोनेट। सोनेट सर ज्यादा पहला होगा। हाँ पहला प्रेफरेंस इसी का था। इसी का होगा। सबसे ज्यादा जो है सोनेट ही रेनेसा पीरियड में यूज किया गया। अगला है, व्हाट इज द करेक्टेस्ट फीचर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री? ये भी तुरंत पकड़ लिए होंगे। बोल्ड एंड इंजीनियस बी, बोल्ड एंड इंजेनियस। इंजीनियस कंसीट। कंसीट आ गया तो यही आपके लिए पर्याप्त है कि मेटाफिजिकल से रिलेटेड कंसीट होता है, डिसिमिलर ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इम्प्लाइड सिमिली। इम्प्लाइड सिमिली विद द बीटी रिस्पॉन्स, तो वो भी जो है आपका कंसीट ही आएगा। में जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following is not a common feature of the metaphysical poetry? कौन सा फीचर मेटाफिजिकल पोएट्री का नहीं है? ये सारी की सारी चीजें हमको लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े अभी? यूज ऑफ एवरीडे लैंग्वेज। सर ऑप्शन नहीं दिख रहा। हेलो, सी ऑप्शन नहीं दिख रहा? सर, सी सर 5 में जो है सी होना चाहिए। यूज ऑफ एवरीडे लैंग्वेज। सी सही सही। यूज ऑफ एवरीडे लैंग्वेज। यूज ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या था? सब्टल एंड कॉम्प्लेक्स थॉट। सब्टल का मतलब बहुत सूक्ष्म, सूक्ष्म और कॉम्प्लेक्स थॉट की बात करी जाती थी। इंटेलेक्चुअल रिगोर, बौद्धिकता बहुत थी, और एम्प्लॉयड ऑफ अनयूजुअल इमेजेस। ये सारे फीचर जो है किसके हैं? मेटाफिजिकल पोएट्री के हैं। ये यूज ऑफ एवरीडे लैंग्वेज ये इसका नहीं है। अच्छा, ये किसका फीचर हो सकता है? किस पोएट्री का?
रोमांटिक पोइट्री का ये फीचर, रोमांटिक जी विलियम जी वर्ड्सवर्थ रोमांटिक, वाली। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक बोला इसका भी है। है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो जो है सिंपल होनी चाहिए, बहुत सही, रसिक बहुत होनी सही, चाहिए। बहुत सही। अगला क्वेश्चन, हु कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेटाफिजिक पोइट ऑफ द रेनेसां पीरियड? जॉन डन। ये भी तुरंत पकड़ लिए होंगे, जॉन डन। ऑप्शन जॉन डन वेल फेमस, ये ऑप्शन हो गया आपका। अगला है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब व्हेन द ऑडियंस आर रीडर हैज मोर नॉलेज अबाउट द सिचुएशन आर कैरेक्टर्स ट्रू इंटेंशन देन द कैरेक्टर देमसेल्फ? ये भी समझ गए होंगे। जब ऑडियंस जो है ये समझ लेता है कि आगे स्टोरी क्या होने वाली है पिक्चर में, तो वो उस चीज को जो है हम क्या कहते हैं, ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी। Which literary period is known for its focus on individualism, rationalism, and scientific inquiry? रेनेसांस। रेनेसां, हाँ, इंडिविजुअलिज्म की बात करता है और रैशनलिज्म की बात करता है और साइंटिफिक इंक्वायरी की बात करता है। वो क्या है? रेनेसां है। इसी तरीका सेम क्वेश्चन भी आगे मिलने वाला आपको है, ध्यान रखिएगा इसको। What is the name of the poetic form that consists of 14 usually written in iambic pentameter associated with the Renaissance period? क्या होगा? ये ऑप्शन सर, सोनेट लाने होगा, में बहुत सही बात 90 है। 90 होती है, हाइकू में 5 लाइन्स जी, होती है, जी, और जी। है एक नैरेटिव पोएम। बहुत सही। अगला है, which of the following is not a notable writer of the Renaissance? होती है, 3 लाइन की होती है। हाइकू में 3 होती है, 5। हाँ, मैंने 5 बताया था, 5 नहीं होती हैं, 3 होती हैं। 3 सॉरी। हाइको जापानीज टर्म, 3 लाइन होती है इसमें। क्या है? ठीक, थैंक यू। Which of the following is not a notable writer of the Renaissance period? कोई कुछ कह रहा? हमारी आज नहीं मिल रही क्या? सर बिनाले में कितनी होती है? इसमें 19 लाइन्स होती हाँ 19, सबसे ज्यादा इसी में होती है। लैम्पून में 5 लाइन होती है ना? ओड में कितनी होती है? सर उसमें तो वो होते हैं 3, वो होते हैं ना, स्टॉपी, एंटी स्टॉपी और रिपोर्ट। स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, रिपोर्ट। ठीक। अगला इसमें बताइए, रेनेसां का कौन सा राइटर नहीं है? विलियम शेक्सपियर तो है, क्यों? मिल्टन भी है सर। यस जी। सर। जेफरी चासर, जॉन डन। जेफरी चासर नहीं, चॉसर नहीं है सर। जॉन डन। चासर नहीं है, ये ओल्ड इंग्लिश के हैं, ये मिडिल इंग्लिश के। चौसर हो जाएगा। राइट। जॉन डन मेटाफिजिकल। अगला, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्सटेंडेड मेटाफर और इलेबोरेटेड कंपैरिजन बिटवीन टू सीमिंगली डिसिमिलर थिंग्स? तुरंत पकड़ रहे होंगे, डिसिमिलर थिंग्स जहां जाए, यूज इन मेटाफिजिकल पोएट्री। क्या हो गया? कंसीट। What is the term used to describe a literary work that tells a story in verse form? नॉवेल, स्टोरी, ड्रामा तो होगा नहीं। इपिक पोम, इपिक पोम, सी। Which of the following is not a notable Victorian novelist? थोड़ा ये अलग से क्वेश्चन बन गया, लेकिन नाम इसमें है। चौसर है, नॉट पूछा है ना, नॉट पूछा है हमने, नॉट में। चौसर है। हाँ, ये चौसर हो जाएंगे सर। बट
बाकी ये WM ठाकरे, डिकेंस और ब्रोंटी ये तो सब हैं, चौसर नहीं है, इसलिए हमने इसको बना दिया। What is the term used to describe the literary work that present the fictional story in prose form? नोवेल, नोवेल होता है सर, नोवेल। नॉवेल होगा, नॉवेल होगा। फिक्शनल जो है चीजें फिक्शनल नॉवेल में ज्यादा दिखाई है। ये ऑप्शन आपका आ जाए। Which of the following is not a notable modernist writer? अब ये है क्वेश्चन तो मॉडर्न एज के बिलोंग करता है, लेकिन हाँ जॉफरी चौसर इसमें विकल्प है, इसलिए हमने भी है, इलियट भी है। जी 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 बहुत सही। Which of the following is not a notable writer of the हार्लेम रेनेसा? रेनेसा पढ़ा होगा, हमने उस दिन चर्चा करी थी। हार्लेम रेनेसा क्या होता है बताएगा? चाउसर योग। सर इसका नहीं पता। सर कुछ ये पढ़ा था अमेरिका, उसमें जो एक स्थान है जहाँ पे नई चीजों का मतलब वो हुआ, वहीं से रिलेटेड। बहुत सही मैडम, पकड़ रही हैं, बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं आप। हार्लम रेनेसा जो है, रेनेसा जो हम लोग पढ़े हैं, हालांकि इसको हम 2-3 बार हम पेड में भी डिस्कस कर चुके हैं, और जब हम स्टडी प्लान चला रहे थे उसमें भी डिस्कस किए थे। रेनेसा जो हम वहाँ पर 1500 से जो के बाद का जो काल हम इलिजाबेथन जैकोबियन मानते हैं, वो रेनेसा नहीं है। ये रेनेसा जो है आता है आपका 1920 हाँ 1920 लगभग 30 के बीच में। इसको 20th वीक के नाम से भी जानते हैं। मूवमेंट है ये, अमेरिकन हाँ मूवमेंट। हाँ बहुत सही है। ये अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट है। अफ्रीकन अफ्रीकन अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट है। और ये क्या था, ये जो है एक ज्वाइंट अपना कल्चर था, और फैशन, लिटरेचर, पॉलिटिक्स में और थिएटर में ये अपनी चीजें डिपिक्ट कर रहे थे राइटर्स। तो इस पूरे मूवमेंट को जो है हार्लम रेनेसा के नाम से जाना गया है, कि अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीकन जो ब्लैकिश और जो वहाँ की रूरल जो कल्चर थी उसको जो है अपने राइटिंग में डिपिक्ट करते थे। तो हार्लम रेनेसा जो है ये ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज बन सकती है ना। श्वेत लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। हाँ हाँ हाँ, तो ये चूंकि जो है मॉडर्न है टर्म, और जॉफरी चौसर इसमें है, ओल्ड इंग्लिश के से रिलेटेड, मिडिल से रिलेटेड है, तो यही होगा आपका, जॉफरी चौसर नहीं। बाकी ये सारे जो है हैं, समझ रहे हैं, बाकी सारे हैं। ये डी ड्रामा कहीं दूसरे का चीज का कट के इधर आ गया, इससे कोई मतलब नहीं। अगला देखिए भाई, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री व्हेन एलिजाबेथ फर्स्ट रूल्ड? एलिजाबेथन। एलिजाबेथन एज रूल्ड, एलिजाबेथन एज सही हो जाएगा। अगला बताइए, हाउ लॉन्ग डिड द एलिजाबेथन एज लास्ट? कितने साल तक एलिजाबेथन एज रही है? हम लोगों ने अभी तो रिसेंटली पढ़ा। कितना है? 45। जस्ट 45। Stop sharing. जी, स्क्रीन विजिबल, आवाज क्लियर? यस सर। यस सर। इसमें क्या होगा? 45 है ना? 45 ईयर का इनका पीरियड माना जाता है। Which of the following not a feature of the Elizabethan age? नॉट ए फीचर पूछ रहा है, नॉट। रिलीजियस टॉलरेंस,
बड़ा शांति व्यवस्था कायम करी थी इन्होंने, ग्रेट ट्रेड भी हो रहा था, डी ऑप्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड। सर, डी ऑप्शन। डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा, ये यस तो सर। है उसी का टाइम का शायद, कब का है? सर ये सोनेट यही में होगा। 1855। हाँ डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा कब होता है, ये घटना कब की? सर 1855 है। 48 है 55 और 48 यस सर, इसमें सर 1588, कह रहे हैं 1588। 1588, तब तो जो है ये एलिजाबेथन का पीरियड का ही आया ना। जी यस सर, सर, जी सर, एलिजाबेथ इससे नहीं होगा। सर इसमें है सर मुझे सीवाई में डाउट लग रहा है सर, सीवाई देखिए सर एक बार। सी वाला होगा आपका, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, इस पे ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। ये बाकी ये तीनों हैं। इम्प्रूविंग ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ये है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये न्यो क्लासिकल पीरियड में मिलता है, अरिस्टोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग है, ये न्यो क्लासिकल पोएट्री का फीचर है, ये उसमें नहीं है, एलिजाबेथन की नहीं है ये करेक्टरिस्टिक्स। न्यो क्लासिकल पोएट्री में कंसीडर करेंगे आप सी पॉइंट को, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सही सही। बाकी जो है ये जो है 1588 में होता है। अगला देखिए, व्हाट इज द एलिजाबेथन एज आल्सो नोन एज? कैसे जानी जाती है? सर गोल्डन एज। एलिजाबेथन एज गोल्डन एज जाना जाता है हमें। गोल्डन एज ऑफ? इसमें तो सर ऑल ऑफ दी होना चाहिए, ड्रीम्स एज ऑफ एडवेंचर। ड्रीम्स, एज ऑफ एडवेंचर्स, इंटेलेक्चुअल। क्या होगा? ऑल ऑफ दी। सर इसमें हाल होगा कि एडवेंचर होगा? आई थॉट एडवेंचर। तो सर वो इंटेलेक्चुअल भी इसी में तो आता है, एलिजाबेथ वाले में इंटेलेक्चुअल वाला भी। इंटेलेक्चुअल और इसको ऑल ऑफ द एबव आएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कर गुजरने का स्वप्न था रेनेसा पीरियड के दौरान, अपनी इंटेलिजेंसी का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। ड्रीम भी देख रहे थे, नई नई चीजों की, नई नई इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे, कोपरनिकस आए, गैलीलियो, तमाम लोग आए, ऐसा पीरियड होगा। बहुत सही। गोल्डन एज भी कहा गया है एलिजाबेथन एज को। गोल्डन एज, ऑप्शन में जब होगा तब आप देख सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नोटेबल राइटर ऑफ द एलिजाबेथन एज? कौन नहीं है? वर्ड्सवर्थ नहीं है, बाद बाकी सभी हैं। वर्ड्सवर्थ नहीं है, बाद बाकी सभी हैं। एडमंड स्पेंसर, थॉमस सैकविल, फिलिप सिडनी, ये सारे के सारे हम लोगों ने पढ़े हैं। What is the name of the Edmund Spenser's epic poem refers to Queen Elizabeth I? फेरी क्वीन आएगा, फेरी क्वीन। आर्थोपल सिडनी की डेथ पे लिखी गई है, पेस्टोरल एलेजी है, 88 सोनेट की सीक्वेंस है, अमरवती, एपिथेलियम मैरी सॉन्ग है। कह रहे फेरी क्वीन ही है। What is the name of the Thomas Sackville first English tragedy? गौरबुडक होगा, गौरबुडक करेक्ट। बी एंड सी दोनों होगा, ये इसका सब टाइटल है। 1561-62 में लिखी जाती है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, फर्स्ट ट्रेजेडी कंसीडर की जाती है, 1562 में पब्लिश होती है, 61-62 में लिखी जाती है। डी ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following is not a work by Philip Sidney? टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का है, बाद बाकी सब सर फिलिप सिडनी के हैं। आर्केडिया पेस्टोरल रोमांस है, टाइपोलॉजी फॉर पोएट्री स्टीफन गोसॉन के रेस्पॉन्स में लिखा गया है। एस्टोपल एंड स्टेला 108 सोनेट, 11 सॉन्ग मिलते हैं। बहुत सही। अगला है, हु ट्रांसलेटेड इलियड इन 1611, ओडिसी इन 1614? जॉर्ज चैपमैन ने ट्रांसलेट किया है सबसे पहले। George Chapman was the first who translated Iliad and Odyssey into English. George Chapman will be correct answer.
व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ हाईली एजुकेटेड मैन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड ऑक्सफोर्ड होना कैम्ब्रिज हाँ, स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ से यही साउंड। थे अपने लिए, इंटेलेक्चुअल समझते थे अपने लिए, यही है, ये ऑप्शन होगा। ये ऑक्सफोर्ड होगा, यहाँ पर ध्यान रखिए। यस सर। यूनिवर्सिटी विट्स। अच्छा ये बताइए, जितने जो क्वेश्चन आज हमने 25 क्वेश्चन ही बने थे, ये आप लोगों के हिसाब से किस किताब से लिए गए हैं, किस बुक से हैं? मार्केट की किसी बुक से है? कोई पढ़ा आप लोगों ने? नो सर, बनाया हुआ है कुछ। जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये काम जो है बहुत आसान किसी एक व्यक्ति के लिए करना नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, बड़ा एहसान मानिए आप, लेकिन उसका मतलब बस एक ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई के अलावा समय निकाल के आप लोगों के लिए कुछ कर रहा है, इतना तो जरूर कर सकते हैं, कम से कम आप जो है उसके साथ बराबर बने रहें। अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, कम से कम उतने लोग तो लगातार बने रहें। और ये एक बहुत ही समझ लीजिए क्या बात कर सकते हैं, विडंबना वाले की बात है कि कोई व्यक्ति आपसे अपील कर रहा है कुछ देने के लिए, जबरदस्ती बुला बुला करके। समझ रहे हैं इससे क्या फायदा है? हमारा फायदा हमारा इतना है कि हमारा भी आपके साथ में वो सारी चीजें रिवीजन होती हैं जो चीजें आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो एटलीस्ट हमको सबको लेना है, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, है ना? तो चीजें तभी हो पाएंगी बहुत अच्छे से जब आप जो है बराबर साथ देते रहेंगे। एक व्यक्ति को जो है 25 क्वेश्चन बनाने के लिए ये पूरा टेस्ट जितना बनाया पढ़ाया है आपको, और फिर ये सारा कुछ टाइप्ड है। ऐसा नहीं कि ये उसका टेलीग्राम के कुछ की तरह जो है आपको कुछ करा के दे दिया गया, मतलब काम खत्म। इसका पीडीएफ भी है, हालांकि पीडीएफ सारे पेड वाले साथियों के लिए अवेलेबल है। स्क्रीनशॉट कोई भी लेके अपने साथ रख सकता है, नोट बना सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जा रही है यूट्यूब पर, वहां से भी चीजों को देख सकते हैं। तो लगातार बने रहिए ताकि जो है मनोबल हमारा भी बना रहे, मिस ज्यादा ना करा करें। अगर ज्यादा मिस करेंगे तो फिर पेड हमको पेड की तरह हमको एक नई क्लासरूम आईडी क्रिएट करके फिर उन्हीं लोगों को हम शामिल करेंगे इसमें जो एक्टिव हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्टिव ग्रुप बने और उस ग्रुप के साथ हम सब लोग मिलकर सिलेक्शन लें। और इसके लिए कोई पैसे की डिमांड नहीं है आप लोगों से कि ये सोच रहे हो कि दाना हम डाल रहे हैं, आप उसके बदले में पैसा देंगे हमको। तो जो चीज क्लियर है वो हमने बता दिया, पेड का हमारा अलग चलता है, उसका जिसकी मर्जी होगी जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा कोई बात नहीं। हमारा यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट है, तो जो भी बंदा जब तक के हमारे साथ चाहे जुड़ सकता है। वैसे मेरा प्रोग्राम अप टू एग्जाम है, आगे आने वाले समय में जो है अभी कम से कम हमारे पास 4 महीने हैं, और 4 महीने कैसे हम लोग बिताएंगे ये सोच लीजिए। जनरली सब लोग जो है पारिवारिक जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं। इस उम्र में आ करके कोई एक नहीं कह सकता है कि हम भाई साहब सिर्फ पढ़ाई के लिए मम्मी पापा के रहमो करम पे चल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और जरा सा भी उन जिम्मेदारियों में बहुत ज्यादा अपना डाइवर्ट हुए और अपनी पढ़ाई को कमजोर किए तो आगे आने वाला समय जो है आपके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो हम चाहते हैं उन जिम्मेदारियों को भी आप लोग निभाते रहें, और बिना पैसे की। हम जानते हैं कि 5-6 हजार 10 हजार दे करके आप बराबर पढ़े बैठे हैं, हमारे साथ जुड़ करके लगातार अपने नॉलेज को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने हिस्ट्री पे ये पढ़ाई करी थी जो अब तक के, तो उस पे जो है हम लोगों ने ये कर लिया, टेस्ट कर लिया एक प्रकार से 25 क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा होता है वो है ग्रामर का। लिटरेचर पे तो समय इतना हो गया, तो थोड़ा लिटरेचर ही कंटिन्यू कर लें, इसी को आगे ग्रामर अगले दिन से चालू किया जाए। ग्रामर में क्या है कि ग्रामर अभी हम बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं, बस उसका फंक्शनल ग्रामर के 2-3 चैप्टर बचे हैं, उसको फिनिश करने के बाद फिर ग्रामर को हम जो है आपको शुरू से लेके चलेंगे, स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, जहां से जितना कुछ आपने पढ़ा है उस पूरे ज्ञान को आपको रिवाइज करा डालेंगे, बशर्ते आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और वोकैब की जो क्वेरी आपकी आई है, तो वोकैब पे भी आप लोगों के हिसाब से हम काम करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है उसका बेनिफिट हम सबको लोगों को मिले। और इसमें देख रहे हैं ज्यादातर लोग रेगुलर वही है जो हमारे पेड है, और जो लोग पेड नहीं है वो इसीलिए नहीं रेगुलर है क्योंकि उनका पैसा नहीं लगा है। और इसीलिए कहा गया है कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में है नहीं, और जिसको मुफ्त में देना चालू कर दोगे उसके 20 रीजन लोग ढूंढना चालू कर देंगे।
और एग्जाम्पल के तौर पर किसी को 1,000 रुपए के नोट, 500 के नोट देना चालू कर दीजिए चौराहे पे खड़े होकर के, तुरंत जो है आके पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं गिरफ्तार करेंगे तो जिसको दे रहे हैं वही जाके फोन कर देगा, ये कहाँ से पैसा लाया है, गड़बड़ हो गया मामला। आप तो चले थे नेकी करने, फंस गए, चलो जवाब दो, पैसा कहाँ से लेके आए। तो आज की डेट में इसका चरितार्थ, आप सब लोग बौद्धिक वर्ग से हैं, उस चीज को चरितार्थ न करिए, लगातार जुड़े रहिए। और हम एक ग्रुप ऐसा बनाना चाहते हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में क्रॉस कर जाए, क्वालिफाई कर जाए, और उसमें हमारा भी एक सहयोग, हमारी टीम का, मैडम का एक सहयोग उसमें हो जाए, है ना। हम भी कह लें कि हमारे साथ के लोग जो है 10 लोग या 15 लोग जो भी थे हमारे साथ में, वो सिलेक्शन लिए हैं, ग्रुप में सिलेक्शन लिए, समझ रहे हैं। इस नाम के लिए परेशान है बस हम लोग, और तैयारी भी साथ में हो जाएगी आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ में। अब इसको किस एंगल से लेते हैं आप लोग, ये आप लोगों पे, विवेक पे निर्भर करता है। क्योंकि अपने भारत की तो हमने टेंडेंसी ये देखी है कि अगले का अगर 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो 2 रुपए का अपना नुकसान सह लेंगे, लेकिन अगले का 1 रुपए लाभ जो है बड़ा बर्दाश्त नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि लाइक सब्सक्राइब आपसे करवा रहे हैं, यूट्यूब चैनल है हमारा, लाइक सब्सक्राइब कर देंगे पैसा मिलने लगेगा। यूट्यूब पे वीडियो देते हैं, मर्जी है आप लाइक सब्सक्राइब करिए, उसको ना करना ना करिए, कोई बात नहीं, है ना। बशर्ते बने रहिए लगातार। सर मैं तो रेगुलर स्टूडेंट हूँ आपका, जब से आपका स्टार्टिंग हुआ है। बधाई के पात्र हैं आप। अब फ्री जितने भी वाईफाई हूँ साथी सर। जो है, जितने भी साथी जो है जुड़ रहे हैं वो सब बधाई के पात्र हैं, और वो हमारे पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन भला अपना कर रहे हैं, नहीं है सर, ना। ऐसा नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं, एहसान तो सर आप मेरे ऊपर कर रहे हैं ना, फ्री बैच देके सर, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन ये अभी बैच आपने कहा देने कि के भी हमारे, मोस्टली पैड वाले स्टूडेंट हैं इसमें, उसको सर मैंने कहा कि हाँ मतलब हाँ, आपका नहीं फ्री। नहीं नहीं, बढ़िया है, चलिए ठीक है। वो हमारा सौभाग्य है कि हमारे, हम जो है आप सभी लोगों के इंटेलेक्चुअल्स के बीच में तैयारी कर रहे हैं। हम कोई कोचिंग नहीं है, और ना ही कोई हमारा ये कोचिंग का कोई बैच लॉन्च हुआ है। हम सब लोग एस्पिरेंट हैं यहाँ पर। कुछ साथी हमारे इस प्लेटफॉर्म का यूज करके, यूज क्या मतलब, इसका लाभ ले करके अभी बिहार में सिलेक्शन ले लिए। हमारी टीम से खुद एक साथी सेलेक्ट है, लेकिन चूंकि हम लोग जो है सिर्फ यूपी बेस्ड है, अभी एक लोग एमआरएस में सेलेक्ट हुए, अपने ही साथी सेलेक्ट हुए। लेकिन कोई ऐसा हमारा पर्पज नहीं है कि अभी हम कोचिंग अपनी चला रहे हैं, आप लोग आओ जुटो। हाँ, सबसे पहला प्राथमिक लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में सब लोग बिहार में जाके सर्विस नहीं कर सकते। हर व्यक्ति जो है ये हमारे जाके कन्याकुमारी सर्विस नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस हैं। जिनकी कंडीशंस हैं ये अलाउ करते हैं बिहार में सर्विस करने के लिए, सर्विस ले रहे हैं, आ रहे हैं सिलेक्शन। अभी 2 लोग अपने प्लेटफॉर्म से, एक शायद जो आप लोगों से परिचित हो, वाराणसी के नीलम मैडम, वो भी सिलेक्ट हो गई, और लाल मोहम्मद सर वो भी सिलेक्ट हो गए, और एक है नीलू रस्तोगी, वो भी अभी टीजीटी पीजीटी दोनों में उनका हो गया, पीजीटी ज्वाइन किया उन्होंने। और ईएमआरएस में अभी जो है एक थे हमारे रंजना वाजपेयी, वो ईएमआरएस में भी सेलेक्ट हो गई, मैडम थी, नोएडा से थी। तो वो सब लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। फायदा यह है कि जबरदस्ती हम आप लोगों को काम करा रहे हैं, आप कुछ भी करें, हम 5 बजे क्लास है, आप आइए जुड़िए हमसे। तो जो 3-4 लोग जो सेलेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं जाके तो हमारा नाम लेंगे ही लेंगे कि भाई साहब उस प्लेटफॉर्म से हम जुड़े रहे तो हमारा सिलेक्शन हो गया। जरूरी नहीं है कि वो हमारा, हम फोटो उनका चिपकाएं, बैनर लगाएं जा करके, वो कोचिंग वाले करते हैं, और जब आवश्यकता होगी तो सबका एक साथ में लगाएंगे। ये सब जो है हमारे ग्रुप से है सिलेक्टेड, और वो भी लगाएंगे तब एक दूसरे का सहयोग करके सिलेक्शन, रेसिप्रोकल एजुकेशन, है ना, नॉट ओनली टीचर स्टूडेंट, रेसिप्रोकल ग्रुप। तो हम लोगों का ये रेसिप्रोकल है, सुन रहे हैं आप? मेरे आगे सर, मेरे तो आगे सर मजबूरी है, मैं तो ये हमारे सर सिलेक्ट हूँ टीजीटी में, नंबर भी है उसमें मेरा, लेकिन मजबूरी यही है कि बाहर नहीं जा पाऊंगा सर, क्योंकि घर की। हाँ चलिए, बहुत सारे लोगों की अपनी दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोगों की अपनी दिक्कतें हैं, बाहर नहीं जा सकते। उसी में एक हम भी दिक्कत वाले इंसान, मान लो कि मैं अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के नहीं जा सकता बाहर, इसलिए यूपी ही सहारा, यही सब कुछ करना। हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, हम लोग न्यू क्लासिकल एज पढ़ रहे थे, क्यों? यस सर, यस सर। न्यू क्लासिकल, ये तो भाई दूसरी पीडीएफ लग रहा है, ओपन हो गई, जस्ट वेट।
रेस्टोरेशन सही है। न्यू क्लासिकल में हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ तक हो गया था ना। यस सर, यहाँ से होगा हु आर द नोटेबल राइटर्स ऑफ हाँ सही है, खोले थे फिर से बिना मतलब बंद कर दिए उसको। जी सर। हु आर द नोटेबल राइटर्स एंड देयर वर्क्स ऑफ द एज। कौन है सबसे पहले? जॉन ड्राइडन का आता है। पोएट्री हम सबसे पहले देख रहे हैं, पोएट्री में कौन कौन से पोइट थे? जॉन ड्राइडन है। जॉन ड्राइडन 1631 टू 1700 तक के माना जाता है। ये जो है ड्राइडन वाज नॉट ओनली प्ले राइट, जनरली इनका प्ले राइट के रूप में जाना जाता है, बट ए सिग्निफिकेंट पोइट ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड, एक महत्वपूर्ण जो है पोइट भी थे। सम ऑफ हिज नोटेबल पोएट्रिक वर्क्स इंक्लूडेड हियर, नंबर 1 एनस मिराबल 1667। अच्छा, एनस मिराबल एक टर्म भी यूज होता है, उसका मतलब क्या होता है? एनस मिराबल्स क्यों? एनस मिराबल्स एक टर्म भी है, वैसे तो इनका ये वर्क है। एनस मिराबल्स रेड डेज, हैप्पी डेज जो होते हैं, हैप्पी डेज, जैसे किसी का सफलता का जो पीक पॉइंट होता है, जिसमें बहुत ज्यादा उसके हैप्पी डेज होते हैं, प्रॉस्परस डेज होते हैं, उसके लिए भी एनस मिराबल का यूज किया जाता है। दैट कमेमोरेट्स, जैसे आपका वर्ड्सवर्थ का एनस मिराबल कब से कब तक के माना जाता है? क्यों? कब से कब प्रॉस्परस रहा है वर्ड्सवर्थ का? भाई उनका विलियम, उनका जो वो था मैग्ना कार्टा, 1790, yes sir, 1798 to 1807 and maybe 1814, right? Both are correct na? I think 1798 to 1805। सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। 1807 मैम, कहीं कहीं 1807 मिलता है, कहीं कहीं 1814 मिलता है। बोथ आर करेक्ट। ओके। टेनिसन का 1850 जो है एनामराबलिस डे है, और कीट्स का जो है 1818 1870। शेक्सपियर का भी तो है।